Everyone, welcome to economics class. Hope you all are well and you are at home and you are safe. Today we will start the fourth video on national income and related aggregates. So far we have discussed about difference between factor incomes and transfer incomes. Then we discussed about the concept of normal residence, then about the domestic territory, then about the different aggregates and the conversion of these aggregates in one and another form, like how NDP at FC can be converted into GNP at MP, so and so. Let's start the topic. Let's recapitulate, dear students. There is a difference between net and gross concept. Whenever we want to move from net to gross, we will have to add depreciation. Similarly, while moving from gross to net, we will deduct depreciation. Similarly, whenever we have national product or domestic product, we will use the term net factor income from abroad. From national product to domestic product, we will subtract net factor income from abroad. What is net factor income from abroad? Net factor income from abroad means factor income from abroad minus factor income to abroad. Then, whenever we are to move from factor cost to market price, we will use the term NIT. This is net indirect taxes. Net indirect taxes are the difference, net indirect tax is the difference between indirect taxes and subsidies. So, let's be practical. There is an example, calculation of related aggregates of national income. Here is an example, few items are given to you like NNP at FC is given, NIT is given, depreciation is given, net factor income from abroad is also given. You are to calculate NNP at MP. Dear students, NNP at FC से NNP at MP में आने के लिए हम क्या करेंगे? NNP at FC प्लस NIT. आपको याद है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हमें MP से FC में जाना है तो हम माइनस NIT करते हैं. इसका मतलब FC से MP में जाना है तो हम NIT को ऐड करेंगे. सिमिलरली NDP एट FC मीन्स NNP एट FC से डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में जब हमें जाना है तो हम नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे. सिमिलरली NNP एट FC टू GNP एट FC, NNP एट FC टू GNP एट FC, दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वहाँ नेट है और यहाँ ग्रॉस है. जब हम नेट से ग्रॉस में आते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट NNP एट FC टू GDP एट MP, ये सब कुछ बदला हुआ है, ध्यान से देखिए. पहला है नेट, यहाँ हमें चाहिए ग्रॉस, इट मीन्स वी विल ऐड द डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट यहाँ है नेशनल, हमें चाहिए डोमेस्टिक, इट मीन्स माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यहाँ था FC, हमें चाहिए MP, FC से MP में आने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस NIT, वी विल हैव द आंसर. क्लियर बेटा? सो you must learn how to calculate, how to convert these aggregates into one and another form. Now, few more questions are there. One more numerical is there. You have to do this practice. You have to do the practice of these topics also. Move to the next topic. This is about the nominal GDP and real GDP. Dear students, a new concept is there. Nominal GDP and real GDP. It may be, the question may be asked in form of nominal income and real income. लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो नॉमिनल और रियल पर देना है. सबसे पहले जीडीपी के बारे में आपने डेफिनेशन अपनी की थी, उसी जीडीपी को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे. नॉमिनल का मतलब होता है विच इज़ मेजर्ड एट करंट प्राइस. 11th स्टैंडर्ड में आपने करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस के बारे में पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट को हम फिर से उठाने लगे हैं. नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको
जब भी आपको बच्चे नॉमिनल के बारे में बात करनी होगी तो करंट प्राइस पर आएगा आपका। क्लियर? सो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर यूजिंग करंट ईयर प्राइस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नॉमिनल में हम करंट ईयर प्राइस को लेते हैं। सो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। पी भी वेरिएबल है और क्यू भी वेरिएबल है। पी का मतलब prices prevailing during the accounting year, that is the current year prices, while Q refers to the quantum or output of all the goods and services produced during the period of an accounting year। अगर हम ये कहें कि 2020 में जो जनरल प्राइस लेवल है वो 10 रुपीज़ है और जो क्वांटम है वो 50 है, देन what will be nominal GDP? This is P into Q, this is 500 करोड़। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पर 500 आपका आंसर आ जाएगा। ये हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज़ ऑलवेज मेजर्ड बाय टेकिंग द करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। नाउ व्हाट्स अबाउट द रियल जीडीपी? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में पहला डिफरेंस ही क्या आता है? पहला डिफरेंस आता है आपका, दिस इज़ अबाउट द बेस ईयर प्राइस। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि नॉमिनल में हम लेते हैं करंट ईयर प्राइस, हम रियल में लेंगे कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस। बाकी डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सेम चलती रहेगी क्योंकि जीडीपी था। जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? मार्केट वैल्यू फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year. Because it is real, that's why we are using base year prices. Now, what you are to keep in your mind, that real GDP is equal to P star into Q. P star means the price level prevailing during the base year or the constant price. जिस ईयर के प्राइस के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ये उसी का प्राइस लेवल है। यहाँ पर क्वांटिटी या क्वांटम वेरिएबल है और प्राइस कांस्टेंट है, जबकि नॉमिनल में हमने क्या देखा था? प्राइस भी वेरिएबल था और क्वांटम भी वेरिएबल था, जबकि रियल में प्राइस है कांस्टेंट और क्वांटम है वेरिएबल। नाउ व्हाट्स अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी? एज वी हैव स्टडीड दैट दिस इज द फर्स्ट difference on the basis of the meaning or definition. Total economic output produced valued at a current market price, so it is measured at a current price level। बच्चे आप यहाँ पर इस पॉइंट की जगह डेफिनेशन भी दे सकते थे। यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट मार्केट प्राइस है या करंट मार्केट प्राइस है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने डेफिनेशन की थी। आप एज इट इज़ यहाँ पर डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में से, प्रीवियस स्लाइड में से भी निकाल कर लिख सकते हो। देन अबाउट द कैलकुलेशन, दिस इज़ बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, दिस इज़ नॉमिनल। पहले है हमारा नॉमिनल और दूसरा है हमारा रियल। सो इट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट मार्केट प्राइस, दिस इज़ बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड बेस ईयर मार्केट प्राइस। जो भी हमने अपना बेस ईयर लिया है उसके प्राइस लेवल पर हम इसको मेज़र करेंगे। देन प्राइस चेंज इफेक्ट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्योंकि प्राइस यहाँ पर वेरिएबल है इसलिए प्राइस चेंज इफेक्ट इंक्लूडेड होता है। आगे हम इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, दिस इज़ मनी इल्यूज़न। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। मनी इल्यूज़न, यहाँ पर प्राइस इफेक्ट नहीं होता बिकॉज प्राइस इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। देन वैल्यू यूजुअली हायर ड्यू टू इन्फ्लेशन। अगर हम 10 साल बाद जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर निकालेंगे तो जनरली इट इज़ हाई, क्योंकि प्राइस लेवल में बढ़ने की टेंडेंसी होती है एज़ कम्पेयर टू डिक्लाइनिंग टेंडेंसी। ज़्यादातर चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं, इसलिए जो नॉमिनल जीडीपी होता है दिस इज़ यूजुअली हायर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वाइल रियल जीडीपी इज़ यूजुअली लोअर क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं। आज से 10 साल पहले वाले प्राइस को हम लेकर चलेंगे तो इसकी वैल्यू कम आएगी। देन व्हाट्स अबाउट द यूज़ फॉर कंपैरिजन,
used for comparison. This is nominal and this is real. Now, used for comparison across different quarters of output in a year for same country. अगर हम ये बात करें, कई बार आप टीवी में देखते हो कि लास्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट इतना था और अब इतना हो गया. ये हमारा नॉमिनल है, करंट प्राइस ईयर पर चल रहा है क्योंकि हम उसी साल को कंपेयर कर रहे हैं. जबकि जब हम रियल के बारे में बात करते हैं, मोर अप्रोप्रिएट फॉर कंपैरिजन अक्रॉस ईयर्स एंड अक्रॉस कंट्रीज़. यहाँ से हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे कि जो नॉमिनल है, इट डज नॉट फैसिलिटेट इंटर सेक्टोरल, इंटर टेम्पोरल, इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन. चारों ही कंपैरिजन को ये फैसिलिटेट नहीं करता. ये सब अपने कंट्री में एक ही साल में डिफरेंट क्वार्टर्स के लिए, जैसे हम कहें कि जनवरी से लेकर मार्च तक की जीडीपी क्या थी, मार्च से जून तक की क्या थी, और जुलाई से लेकर सितंबर तक क्या थी. मतलब हम एक क्वार्टर्स में ले सकते हैं, बस इसके अलावा इसका और कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता. मीन्स नॉमिनल जीडीपी डज नॉट फैसिलिटेट इंटर सेक्टोरल, इंटर टेम्पोरल, इंटर स्टेट and international comparisons. On the other hand, real GDP is very important because it facilitates intertemporal, means time-wise, intersectoral, sector-wise, interstate and international comparisons. Then what's about the complexity? Comparatively easier to calculate. क्यों? क्योंकि नया प्राइस, नई क्वांटिटी, और जो रियल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमें हर कमोडिटी का बेस ईयर प्राइस चाहिए. और बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो हम बात करें कि 10 साल पहले वो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी. तो ऐसे हमें इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है हमारे लिए टू कैलकुलेट रियल जीडीपी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपैरिजन. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट छोड़ा मनी इल्यूजन का. वो मनी इल्यूजन का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे. देन वन मोर पॉइंट इज देयर, दिस इज एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. रियल nominal GDP does not help us to separate the volume growth and growth due to price changes. वॉल्यूम ग्रोथ का मतलब कि क्वांटम में कितना चेंज आया, मीन्स जो ग्रोथ में चेंज आया वो प्राइस की वजह से आ रहा है या क्वांटिटी की वजह से आ रहा है. रीज़न क्या होता है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही वेरिएबल होती हैं. जबकि रियल में सिर्फ और सिर्फ जो ग्रोथ आता है वो आता ही वॉल्यूम ग्रोथ है. वॉल्यूम ग्रोथ का मतलब कि सिर्फ क्वांटम में चेंज आने की वजह से ही उसमें चेंज आता है. इसलिए ये इकोनॉमिक वेलफेयर का एक बेटर इंडिकेटर है. जो नॉमिनल है, नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज even can increase only by increasing general price level even at the same quantity. मतलब क्वांटिटी में चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है. जबकि अगर हम रियल की बात करें, रियल जीडीपी विल इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन quantity because price level is assumed to be constant or price level is taken as the price of base year. That's why real GDP is a better indicator as compared to the nominal GDP. ये जो पॉइंट है आपका यही शो कर रहा है कि ये सेग्रीगेट नहीं करता, मतलब सेपरेट नहीं करता वॉल्यूम ग्रोथ and growth due to price changes because price as well as quantity both are variable. On the other hand, real GDP just concentrate on volume growth. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्वांटिटी को ही वेरिएबल रखता है और प्राइस इसमें कांस्टेंट माना जाता है. इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करेगा. मीन्स it helps to find out the level of quality of life or level of standard of living of people. That's why it is a better indicator than the nominal GDP. Now, as we have already discussed that real is better than nominal. So, next topic, this is conversion of nominal GDP into real GDP. बेटा इस टॉपिक में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी.
रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इस फॉर्मूले में। 100 परसेंटेज की फॉर्म में है, आपको परसेंटेज दिखना नहीं है लेकिन ये परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल्स हैं, out of these three you will be given any two and you are just to substitute the values and you are to find out the answer. So let's recall the formula. This is real GDP is equal to nominal GDP by price index into 100. Correspondingly, nominal GDP is equal to real GDP multiplied by price index in divide by 100. So ये अगर पहला फॉर्मूला याद हो जाएगा तो दूसरा आसानी से आप अपने आप कोप अप कर सकते हो। नाउ वी हैव फ्यू न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस। बेटा, आई एम सेंडिंग यू 3 क्वेश्चंस, द आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू, सो you are to do practice of these numericals in your fair notebook. Now, next topic, this is the last topic. What is GDP deflator? In 11th standard, you have studied about the wholesale price index and you have studied about the advantages of price index. In that very topic, you discussed that price index are very useful to calculate rate of inflation. Today we are going to discuss about this very concept. Now, what is GDP deflator? GDP deflator is the ratio between nominal GDP and real GDP. Keep in your mind, it is the ratio between nominal GDP and real GDP and multiplied by 100. Multiplied by 100 means this is again in terms of percentage. So, GDP deflator is also known as GDP price deflator or implicit price deflator. So you have to learn these names also. GDP price deflator or implicit price deflator. Then it measures the impact of inflation on the GDP of an economy during a period of one specific fiscal year. कैसे हमें पता लगता है इन्फ्लेशन रेट के बारे में? अगर मैं एक बार नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला लिखूं तो ये मेरा बन जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू बाय पी स्टार इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। बच्चे क्यू तो सेम है, करंट ईयर, ये है आपका करंट ईयर प्राइस, ये है आपका बेस ईयर प्राइस। इसका मतलब जो भी चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? 100 तो परसेंटेज को शो कर रहा है। पी करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या शो कर रहा है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इन्फ्लेशन, the impact of inflation on the GDP of an economy. That's why we can say GDP deflator is very useful to find out the rate of inflation in the economy. So GDP deflator is a factor by which normal GDP is adjusted to calculate real GDP. This is nominal GDP, it's adjusted to calculate real GDP. Got it बेटा? हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ऐसे ही हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल या नॉर्मल नहीं आएगा, नॉमिनल आएगा, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। गॉट इट बेटा? नाउ दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस, can be known as nominal GDP, can be written as nominal GDP. GDP at constant prices can be written as real GDP into 100. So keep in your mind, GDP deflator is the ratio between nominal GDP by real GDP into 100. Here is an example. आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मुझे समझाना है, बहुत अच्छे से समझिए। In the year 2015, nominal GDP $75,000, real GDP is also $75,000, so GDP deflator is 100. हमने इसको कैलकुलेट किया, हमारा 100 आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, हम जो बेस ईयर प्राइस होता है उसको 100 मानकर चलते हैं। सो अगर आपका GDP डिफ्लेटर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे देयर इज़ इन्फ्लेशन।
100 जैसे इस पॉइंट में आपका 104 आया है, 100 से कितना ज़्यादा है 4, हम इसको क्या कहेंगे, द प्राइस लेवल इन द ईयर 2016 हैज़ राइजन बाय 4%। क्लियर। और यहाँ हम 2000 में क्या कहेंगे, 100 से कितना ज़्यादा 15, द प्राइस लेवल और द करंट ईयर प्राइस और द प्राइस लेवल इन द ईयर 2017 हैज़ राइजन बाय 15%। सपोज करिए किसी में आपकी वैल्यू 95 आ जाती है, 95 वैल्यू अगर आपकी आती है, इसका मतलब क्या है, 95 अगर आपकी वैल्यू आती है, अगर आपकी 95 वैल्यू आती है, इसका मतलब ये 100 से कम है। कितना कम है, 5, मीन्स -5। -5 का मतलब फॉल इन प्राइस लेवल बाय 5%। क्लियर बेटा। 100 है, नो चेंज इन करंट ईयर प्राइस, यहाँ क्या आएगा आपका, नो चेंज इन प्राइस लेवल। यहाँ क्या आ रहा है, 4% इंक्रीज इन करंट प्राइस, यहाँ क्या आ रहा है, 15% इंक्रीज इन करंट प्राइस। सपोज किसी क्वेश्चन में 100 से कम मीन्स 95 आ गया, तब हम क्या कहेंगे, देयर इज फॉल इन करंट प्राइस बाय 5%. So this is about the concept of GDP deflator. Now what's about your homework? Dear students, the first question, differentiate between real and nominal GDP. Which one of these two is a better indicator of welfare? आपको टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन करना है, जैसे आपको कॉपी में कराया हुआ। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। देन पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए टेबल की फॉर्म में, उसके बाद आप उस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लिखिए, विच वन ऑफ दीज टू इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ, विच वन ऑफ दीज टू इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। दोनों में से बेटर कौन सा है, अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था, दोनों में से बेटर है आपका रियल जीडीपी। क्लियर। तो आपने इसका आंसर इस तरह से देना है। उसके बाद आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं रियल नॉमिनल के बेसिस पर और जीडीपी डिफ्लेटर के बेसिस पर। गो थ्रू द टॉपिक प्रॉपरली, डू द न्यूमेरिकल्स इन योर नोटबुक। सो stay home, stay safe, do your work properly, and please be prepared for test. On Thursday, there will be a test of chapter number 1 and 2. There will be a subjective test of chapter number 1 and 2. So, be prepared for this. Have a wonderful day. Goodbye, dear students.